Hello student, welcome to chapter number 7, Control and Coordination. In this chapter, in last class we have to discuss to you CNS. ठीक है, तो CNS can be divided into two parts in here. First is their brain and second is their spinal cord. ठीक, तो what is the brain? Let us see this topic. So today I am going to teach about the brain. Now this one is the brain. Let us see how many parts are brain. Brain is further divided into three parts. First is their forebrain, second is midbrain and third is their hindbrain. Then forebrain is also further divided into three parts. First one is their cerebrum, second is their hypothalamus and third is their thalamus. Now midbrain, it's no any division in here. Now come in their hindbrain. This one is the cerebellum and second is their pons voli and next one is their medulla oblongata. ठीक है, तो this one is the division of brain. CNS can divide into the two parts, brain and spinal cord. ठीक है, तो then brain is also divided into the three parts, forebrain, midbrain and hind. Forebrain it means the front part. ठीक है, mid it means center part and hind मतलब posterior part are there. They are also further divided into the cerebellum, the hypothalamus and thalamus. ठीक है, you see this division by the diagram, that is the better for you understand. Look at this diagram of brain. You see there which part consists and make the forebrain. Look, cerebrum is there, thalamus is there and hypothalamus. Both three parts consist and make the forebrain. Now in midbrain where have there, you see there just in center in here, this one is the midbrain and after this posterior side you see there, this one is their cerebellum. ठीक है, this one is the cerebellum, this one is their pons voli and that one is their medulla oblongata. So three parts consist of their hindbrain, pons, cerebellum and medulla. Now in downside you see there of brain, spinal cord is arises from here. Okay, just below the medulla oblongata, spinal cord arises from the here, then go in their downside. Okay, now brain stem it means you see their tree. आप ट्री में देखते हैं कि जितने भी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो एक स्टेम पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं. ना ब्रेन का क्या स्टेम होगा जिसपे ये पूरा हमारा ब्रेन क्या होगा, बेस्ड होगा. तो विच पार्ट कंसिस्ट एंड मेक द ब्रेन स्टेम. सी दिस वन इज द मिड ब्रेन एंड pons और medulla oblongata. Three parts are consist and then make the brain stem. Okay, तो mid brain and hind brain का two parts, one is their pons and second is their medulla oblongata. They three parts are consist and make the brain stem. So this division is brain. Okay, so I think all of you have now come in the point brain. Okay, brain found in the cranium of skull volume. Sorry, brain found in the cranium of skull. ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होगा हमारा, कहाँ पाया जाएगा, क्रेनियम. क्रेनियम जो होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ स्कल. इट मीन्स जो हमारा क्रेनियम, इट मीन्स बोन से बना जो स्ट्रक्चर है हेड का, दैट्स अ क्रेनियम. एंड व्हाट वॉल्यूम इज देयर ब्रेन, उसका वॉल्यूम कितना है, 1450 cc. ठीक है, 1450 इट्स अ क्रेनियल कैपेसिटी इज देयर. cc फुल फॉर्म इज देयर क्रेनियल कैपेसिटी. क्रेनियल नेम रिटन बाय देयर क्रेनियम. ठीक है, क्योंकि ये क्रेनियम के अंदर रहता है तो इट्स मीन्स क्रेनियल कैपेसिटी इज देयर. तो एक ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है वो 1450 cc इज देयर. इट हैज 10,000 मिलियंस न्यूरॉन सेल्स. एक ब्रेन के अंदर 10,000 मिलियंस न्यूरॉन सेल्स होती हैं जो
हमारा न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं वो 10,000 अप्रॉक्सीमेट दे आर कंसिस्ट इन द ब्रेन. नाउ ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 मेनिंजेस. अब देखिए जो हमारी ब्रेन की कवरिंग होती है वो 3 मेनिंजेस. फॉर योर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को मार्केट से परचेज करते हैं तो पॉलीथीन के अंदर आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. तो वैसे ही मान लीजिए सपोज आई एम परचेजिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द शॉप. ठीक है, वेजिटेबल लिया मैंने, उस वेजिटेबल सपोज मैंने ब्रिंजल लिया या पोटैटो लिया. ठीक है, तो पोटैटो को मैंने पॉलीथीन के अंदर लिया है. तो पॉलीथीन इज देयर आउटर कवरिंग. ठीक है, मेरा पोटैटो तब तक रप्चर नहीं होगा जब तक वो पॉलीथीन रप्चर्ड नहीं होगी. तो पॉलीथीन दे प्रोटेक्ट द पोटैटो इनसाइड. ठीक है, तो वैसे ही ब्रेन, सपोज योर पोटैटो, और ब्रेन हमारा क्या होता है इन 3 मेनिंजेस. 3 मेनिंजेस आर ट्रांसपेरेंट लेयर्स. दैट्स अ ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर. ठीक है, ड्यूरा मैटर इज देयर आउटर लेयर, एरेक्नॉइड इज मिडिल एंड पाया मैटर इज देयर इनसाइड लेयर्स. ठीक है, तो मेनिंजेस, ये तीनों मेनिंजेस आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होगी क्योंकि ब्रेन डाउन साइड नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड से कंसिस्ट हो जाता है. तो these meninges is also continue in the spinal cord. Now the brain is covered by the 3 meninges and that's a dura or arachnoid and pia. ठीक है, तो dura is outer, then is middle, then is their inner. Okay, now come in there the division according your topics. ठीक है, तो brain can be divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, forebrain. Now topic is their forebrain. So forebrain, it is the anterior part of the brain. ठीक है, anterior it means ये सबसे आगे का पार्ट होता है ब्रेन का. It consists of 3 parts: cerebrum, hypothalamus and thalamus. Then some supporting parts are also consist from their forebrain. Olfactory lobe has center of smell. ठीक है, hypothalamus has the center for thermoregulation. मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था वेयर हैव अ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस मेन वर्क इज देयर थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट्स अ थर्मोरेगुलेशन. नाउ ऑल्फैक्टरी लोब हैज सेंटर फॉर स्मेल. ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब हमारी होता है ब्रेन में. इट इज द सेंटर फॉर स्मेलिंग, मतलब जो हमें स्मेल का सेंसेशन फील होता है दैट कैन बी फील बाय द ऑल्फैक्टरी लोब. Now what the function are there? You see, emotion, hate, love, pleasure, etc. ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है इससे मिलती है. इट मीन्स फोर ब्रेन का पार्ट जो होता है वो हमें ये सारी फीलिंग्स को, सेंसेशन को देता है. हम इमोशनल होते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, प्यार करते हैं, या किसी का आशीर्वाद लेते हैं. दैट्स इट. ठीक है, नाउ इट्स रूप ऑफ एपिथैलेमस एंड द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, जस्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन. देखिए, अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड यू आर लर्न ऑल दिस थिंग्स अबाउट शॉर्ट. ठीक है, यू सी द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट लाइन यू सी थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन क्या होता है, सेरेब्रम. आपका जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, सेरेब्रम. ठीक है, सेरेब्रम जो होता है वो थिंकिंग पार्ट है. देन सेकेंड इज देयर कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, ये वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो ऐच्छिक होता है, जो ऐच्छिक क्रिया है मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार वर्क हो रहा है. ठीक है, मतलब जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली बॉडी में होती है. नाउ स्टोर इंफॉर्मेशन, इसमें मेमोरी का स्टोरेज करता है. रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सेंसरी इम्पल्सेस मतलब जिस समय हॉट, कोल्ड, इन सब का जो सेंसेशन फील होता है उसको रिसीव करता है और वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है. नाउ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर. ठीक है, हमें भूख लग रही है, इसका भी वो चीज़ें बताता है, वो एक सेंटर होता है उसके लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर मिड ब्रेन. ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया दैट्स अ हिंड ब्रेन. नाउ नेक्स्ट इज देयर मिड ब्रेन. So in mid brain you see there it is the middle part of the brain. ये सेंटर मतलब बीच का पार्ट होता है ब्रेन का. एंड इट्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब जो हम जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है
ठीक है, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी इज दैट, जिस पे हम कोई कंट्रोल कर सके। इट मीन्स जैसे इनवॉलेंट्री मतलब जो अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा नहीं, स्पॉन्टेनियसली वर्क इज नॉट देयर, ठीक है। सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक, डन। नाउ दैट इज द मिड ब्रेन. Now next topic is their hind brain. You see hind brain, it is the posterior part of the brain. Then it consists of 3 parts. First is their cerebellum, जो मैंने जिसे आप छोटा यानी लिटिल ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज देयर, ठीक है, छोटा दिमाग कहते हैं. जस्ट योर पोस्टीरियर इज सिचुएटेड इन द ब्रेन. इट्स कॉल्ड द लिटिल ब्रेन. इट्स कंट्रोल पिक्चर एंड बैलेंस, सॉरी पोस्चर्स एंड बैलेंस, ठीक है. ये क्या करता है, हम कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, तो इट्स अ कंट्रोल देयर पोस्चर एंड बैलेंस योर बॉडी. ओके, नाउ इट्स कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है. ये किसको कोऑर्डिनेट करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स. इट मीन्स जो अपना स्पॉन्टेनियसली दे डू इन द बॉडी. ओके, नाउ एग्जाम्पल इज देयर पिकिंग पेन, ठीक. In next topic is their pons valli. After that the cerebellum. It is a thick white structure and connect the both cerebral hemisphere, ठीक. It's control involuntary action. ये क्या करता है, involuntary actions को control करता है. That's like a regulation of respiration. Now next is their medulla oblongata. Medulla oblongata is the last part of the brain. Controls involuntary function, example heartbeat, breathing and vomiting, ठीक. देखिए ब्रीथिंग अपने आप ही हो रही है, हार्टबीट हमारी अपनी आप ही स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रही है. देन वॉमिटिंग भी हम अपने से नहीं करते, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसके थ्रू वो चीज़ें अपने आप इंटरनली होती हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. इट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ CNS. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स थे, ठीक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द CNS. सो टेल ऑफ ब्रेन, मैंने आपसे ऑलरेडी आई वॉज टोल्ड टू यू कि ब्रेन के डाउन साइड एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे से स्टार्ट होता है. तो ब्रेन क्या है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, टेल ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम. मैंने ये आपको बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक स्पेस होता है, लुक लाइक सपोज दैट, मैंने एक टीयर सेक्शन आपको बताया, दिस वन इज देयर सब वर्टिब्रल कॉलम, ठीक. इसके नीचे एक और होगी, इसके नीचे एक होगी, इस तरीके से हमारा वर्टिब्रल कॉलम. इट्स अ सेंटर इज होल देयर. अब ये ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, दिस वन इज गोइंग देयर बिटवीन. डन. So topic is the spinal cord. Now tail of brain is called the spinal cord. It is protected by the vertebral column. मैंने आपको बताया किस तरीके से vertebral column के सेंटर से होता हुआ जाता है. It is covered by the 3 meninges, also like a brain. ब्रेन में भी आपने देखा ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर आर कंसिस्टिंग फॉर योर मेनिंजीज. दे आर कंटिन्यू इन डाउन साइड इज ऑल्सो फॉर इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो ब्रेन की जैसे ही मेनिंजीज होती है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की भी होती है. क्यों, क्योंकि ब्रेन की ही जो मेनिंजीज होती है वो कंटिन्यू नीचे आने पर स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजीज में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ स्ट्रक्चर यू सी देयर, व्हाइट मैटर फॉर्म्स द आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड and gray matter forms the inner part of it spinal cord. Now you see the diagram for you better understand. This one is the diagram of spinal cord, ठीक है. ये TS सेक्शन है. इट मीन्स अगर हम किसी चीज़ को ऐसे कटिंग करेंगे इस तरीके से तो आपको ऐसा विजुअलाइजेशन दिखाई देगा. Now you see in their spinal cord, this one is their gray matter. इनसाइड जो मैटर है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर. उसके आउटर जो आपको ये दिख रहा है, ये ले, दिस वन इज द वाइट मैटर. सेंटर इज द वेंट्रोलैटरल हॉर्न. इसमें जो हॉर्न्स हैं, दिस वन इज द वेंट्रोलैटरल हॉर्न्स. सो नर्व सेल्स वेयर हैव देयर, यू सी दिस वन इज देयर नर्व सेल्स. आप देख रहे होंगे ये नर्व सेल्स है, डॉट डॉट ब्लैक जो एक बटरफ्लाई शेप में बनी, दैट्स वन इज द नर्व सेल्स.
नाउ कम इन द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको केवल बेसिक ही जानना है। अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स, tail of the brain is called the spinal cord, and it's protected by the vertebral column that covered in the three meninges, dura, arachnoid and pia mater. White matter forms the outer part of spinal cord. See there, white matter is there and gray matter in there inside. And what the function of spinal cord can you see in here? See the first function of spinal cord, it control the reflex activity. ठीक है, ये क्या करता है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लाइक दैट, मान लीजिए आपने किसी गर्म कप को छू लिया, टच किया, तो जस्ट अपोजिट आप एक्शन क्या करेंगे, जस्ट जो आप अपना हाथ तुरंत ही हटा देंगे। इट मीन्स अपना हैंड तुरंत ही वहाँ से हटाएंगे। सो इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज देयर, इट कंडक्ट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। दे कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ओके, now this topic has to complete in here. Now one part is left about brain. Okay, now we discuss with you in the last, after that the spinal cord, one topic are left from the brain. So देखिए बेटा, ब्रेन का मेरा एक पार्ट लेफ्ट हो गया था। दिस वन इज द लोब्स। ठीक है, ये लोब इट मीन्स ब्रेन हमारा कैसे, किस कवरिंग्स में रहता है, किस तरीके से डिवाइड है। तो ये हमारा ऊपर का सुपरफिशियल, सपोज आप अपने हेयर्स को हटाओगे तो स्कैल्प आती है, स्कैल्प की लेयर्स को हटाएंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नाउ वी सी, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो उसमें ब्रेन को हम किस तरीके से मतलब ओपन कर सकते हैं, तो वो लोब के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है। ठीक, दिस वन इज, ये मैंने यहाँ से, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये आगे का है, इट मीन्स आइस के ऊपर का। ठीक है, तो ये आपका जो ये फ्रंट पार्ट है, इट मीन्स इधर वाला। ठीक है, फ्रंटल लोब इज देयर, दिस वन इज द फ्रंटल, ये पोस्टीरियर है। सॉरी, मैंने जस्ट अपोजिट आई वांट सी हियर, मैंने ये आगे का दिया है, दैट्स एंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर इज देयर फ्रंटल। नाउ बैक साइड इज देयर पोस्टीरियर, दैट इज द ऑसिपिटल लोब। ठीक, इन सेंटर वन मिड लाइन डिवाइडेशन, ये दोनों जो होगा वो पैराइटल है, एंड दिस वन इज देयर टेम्पोरल। टेम्पोरल जो होता है वो आपके ईयर के पास का जो बोन है वो आपका क्या कहलाएगा, टेम्पोरल बोन। ओके, तो 4 lobes आर देयर फ्रंट। नाउ यू रिमेंबर, anterior part is their frontal lobe, posterior part is their occipital lobe, and mid part is their both side, this one is the parietal lobe, और ईयर के पार्ट जो इधर और इस साइड मेरा है टेम्पोरल है। ओके, दैट्स अ लोब ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन के लोब होते हैं, दैट्स अ 4 आर देयर, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। ठीक है, देखिए फ्रंटल लोब है, 1 इज देयर, पैराइटल जो होगा वो 2 है क्योंकि ये रहा राइट एंड लेफ्ट, टेम्पोरल इज ऑल्सो 2, राइट एंड लेफ्ट, ऑसिपिटल इज देयर बैक साइड इन पोस्टीरियर। ओके, नाउ thank you.